Satkosia is the southernmost wild habitat for घड़ियाल. घड़ियाल को गोटे स्नाउट रहुची घड़ा, इसलिए उसको घड़ियाल बोलते हैं. दिस इज द सदर्न मोस्ट लिमिट ऑफ प्रेजेंस ऑफ घड़ियाल्स इन द वर्ल्ड. And Satkosia is the only place in our Odisha. Odisha is fortunate. We have 3 crocodilian species. All 3 crocodilian species are available in the wild. You have a gharial in Satkosia gorge. You have muggers here. You have muggers elsewhere. Then estuarian muggers in estuarian crocodiles in your Bhitarkanika area. These are the three main species of crocodiles which are all available in the wild. However, gharial, particularly because of its characteristic, it has a snout. It easily gets entangled in the fishing nets and die. The government of Odisha took an initiative way back in 1970s, late 70s, started the project for this in collaboration with UNDP and all. And during the till 2018-19, we released many gharials bred in captivity, but we couldn't get much of a success. Then in 2019 we launched the project called Gharial Recovery Mission. Gharial Recovery Mission. By the time our population had dwindled to 3, 4 or 5 gharials in the wild. Though in captivity we have plenty. In Nandagaon itself we have about 100 gharials. We started the captive breeding in Nandankanan under the mission called Gharial Recovery Mission, for gharial recovery in its natural habitat or the wildlife habitat. 19 to 21, we released satellite tagged about different age class, about 18 to 20 gharials. But again, for various reasons, we are right now also tracking only, we are able to track only about 4 of those gharials still in the wild, they are surviving. Every year we carry out the estimation or the census, because it's very easy to carry out the census because they come out for basking. They come out the winters, they come out for the basking, and it's very easy to count. We found, last estimation we found, we have the last which was carried this just winter time around December January, we found 7 gharials are present in the wild and about 100 plus muggers in gorge area and nearby ponds and village ponds and all. Regarding these 7 gharials, they are all grown-up gharials. Side by side, we had mating happening since the year 21. It's only one female which is invariably going and laying one nest. 2021, we observed it had laid something like about 28 eggs. उसमें से हैशलिंग्स निकले हमारे 25 तक करीब हैशलिंग निकले. उसमें से अल्टीमेटली वी आर फाइंडिंग अबाउट 3 or 4 आर सर्वाइविंग हैशलिंग. दे हैव बिकम ईयरलिंग नाउ. अगेन इन 22 सेम प्लेस अगेन द सेम फीमेल came and laid the eggs, and this time we got something like 32 hatchlings. 32 eggs were laid and almost 32 hatchlings also came out. And in the current year 37 eggs were laid, of which 35 hatchlings came out. 35 hatchlings are still there. Of 22, because high floods may there's a possibility of hatchlings being flowed down beyond their habitat, going down up to Chaudwar and all. We took out the 13 hatchlings and kept with us. Once the flood water was down, we released them. The 13 hatchlings have become now yearlings, and current year we have 35 hatchlings which have come out of 38 eggs, 37 eggs. 35 hatchlings have come, and we have kept them under a particular place in between Binkai and Tikarpada. The animal is coming and laying the eggs, and we have put up the CCTV camera for 24/7 observations. And we are hopeful, because hatchlings have converted to yearlings, we are hopeful things will improve, because we have increased little more of protection measures. We have also engaged our research assistants. 23 research assistants have been engaged, who are keeping a track on the animals. And also we have involved either side of the Mahanadi Gorge, Mahanadi River, not exactly gorge, even beyond upstream of the gorge, downstream of the gorge also. We have involved about 14 divisions who are adjoining this habitat. And we are observing we have started continuously getting a breeding happening in the wild. This is something unique which has not happened so far.
तो सरकार के लिए कितना खुशी का खबर है? It's really a matter of we as a state both are one of the very wildlife rich states, and our honorable CM is very particular about the wildlife. Recently we had a review done by the honorable CM where he specifically asked me about what is the crocodile efforts you are making, what are the efforts you are making for tigers, what are the efforts you are making for elephants. Recent review, so as you all are aware, honorable CM has started reviewing the department. It had come in the newspapers also. So he's very particular about the wildlife, and that's a big news for us. We are able to have, after 35-40 years, we started a project almost in late 1970s. Precise year is 1975. 1975 से 2021 we started having the hatchlings happening. Though in between also hatchlings were happening, but probably the survivals were not that appreciable. Now hatchlings have converted to yearlings. It means habitat has improved, our protection efforts are yielding the results. Okay. जिस फीमेल घड़ियाल ने नेस्टिंग किया था, अंडे ले किए थे, वो चली गई और दूसरी एक फीमेल आके उनका शी इज लुकिंग आफ्टर दोस हैचलिंग्स. I have a video. I'll share that video also with you. You can see some another the one because we, as I told you, we have kept the CCTV camera. We observe which particular female had laid the eggs, and now another female has come and she is taking care of the hatchlings. I have a video. Actually, this is something unique. Foster mother हमने उसको बोला कि foster biological mother अलग है and foster mother अलग है. This is what a unique phenomena we have observed this year. उड़ीसा में हमारा घड़ियाल को बोलते हैं, उसका स्नाउट में घड़ा होता है, इसलिए उसको घड़ियाल बोलते हैं. लंबा सा उसका स्नाउट होता है, जिस कारण इट इज वेरी ये ज़्यादा ससेप्टेबल होता है. अगर फिशिंग नेट हो रहा है, नेट में एंटेंगल होकर मरने का उसका ज़्यादा चांसेस होता है. उड़ीसा, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, उड़ीसा हमारा सदर्न मोस्ट लिमिट है प्रेजेंस ऑफ घड़ियाल इन द वाइल्ड में इसके नीचे और नहीं है. वाइल्ड में घड़ियाल का हमारा यहाँ पे हमने कंजर्वेशन एफर्ट शुरू किए. बहुत लंबा प्रोसेस है. लंबा प्रोसेस के बाद भी हमको अब सक्सेस मिलना शुरू हो गया है. 2021, 22, 23 रेगुलरली वहाँ पे नेस्टिंग होके हैचलिंग्स आ रहे हैं. तो इसका मतलब कि हमारे जितने भी एफर्ट्स हमने लिए थे, जैसे हमने बोला आपको, हमने प्रोटेक्शन मैकेनिज्म रखा है. हमने कुछ घड़ियालों को जो रिलीज़ किया उन पर हमने सेटेलाइट टैगिंग करी है कि उनकी मूवमेंट को हम मॉनिटर कर सकें. लोगों में अवेयरनेस किया. हमने कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी किए. जहाँ पे ये नेस्टिंग होती है वहाँ पे हमने बिल्कुल ज़ीरो फिशिंग एरिया कर दिया. हमने वहाँ पे कोई फिशिंग अलाउ नहीं किया. पर्टिकुलरली 8 किलोमीटर का स्ट्रेच जहाँ पे ये एक पर्टिकुलर जगह में नेस्टिंग करता है, उसके आइदर साइड हमने बिल्कुल फिशिंग को बंद कर दिया. उसका रिजल्ट है कि वी आर नाउ हर साल हमको वहाँ पे नेस्टिंग हो रही है. एक पर्टिकुलर फीमेल ही नेस्टिंग कर रहा है एंड उससे क्या बोलते हैं, हर साल हमारे उसके एग्स बढ़ते जा रहे हैं और हैचलिंग्स बढ़ते जा रहे हैं. एंड इसका जो रेलेवेंस है कि गॉर्ज पानी उसको क्यों चाहिए, गॉर्ज का उसके लिए रिलेवेंस क्या है कि ये जो एनिमल है, ये जो कोर्टशिप करते हैं, कोर्टशिप आप समझे ना, जब बिफोर दे गो फॉर ब्रीडिंग एंड ऑल कोर्टशिप करते हैं, उसमें उनका है दैट्स अ नेचर्स रिक्वायरमेंट. दे गो डीप इनसाइड द वाटर. दे नीड अ डीपर एरिया, डीपर वाटर बॉडी फॉर दैट, एंड गॉर्ज इज द आइडियल प्लेस फॉर दैट. इसलिए सतकोशा गॉर्ज का ज़्यादा रिलेवेंस है इसके कारण से. एंड उसका एक और रिलेवेंस है घड़ियाल के अलावा भी. वहाँ का एक और रिलेवेंस, स्पेसिफिक रिलेवेंस हमारे गॉर्ज का है. वहाँ पे इंडियन स्किमर एक बर्ड होता है, वो भी आके वहीं पे अंडा ले करता है. जब वहाँ पे बीच भी सैंड बैंक्स बन जाते हैं बीच में पानी की, वहीं पे वो उसको एग को ले करता है, फिर वहीं से भी बर्ड्स निकलते हैं. तो घड़ियाल का प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल है आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स, ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स के एफर्ट्स के बाद से कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 3 ईयर्स हमको वहाँ पे हैचलिंग्स आ रहे हैं. एट ए टाइम, जैसे मैंने आपको बोला कि इन लोग का एक टेंडेंसी होता है, ये देते हैं करीब 20 से 40 अंडे एट ए टाइम देते हैं. 20 से 40 अंडे देते हैं. वहाँ पे अभी एक ही फीमेल है जो नेस्टिंग कर रही है. हमारे पास टोटल अभी एस्टिमेशन हुआ जो एडल्ट है वहाँ पे करीब 7 एनिमल हैं. उसमें से 4 फीमेल हैं, 3 मेल हैं, बट एक ही फीमेल, पर्टिकुलर फीमेल ही हर बार वहाँ पे एग्स लेकर, इसलिए केवल एक ही नेस्ट बन रहा है. इस साल कितना दिया? इस साल 38 अंडा दिया है. 37 अंडा दिया, जिसमें 2 अंडे खराब हो गए. उसमें से निकले 35 से हैचलिंग निकल के आए हैं. सर, गवर्नमेंट और क्या स्टेप ले रही है इसको आगे बढ़ाने के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जैसे हाई फ्लड्स में देयर इज अ चांस कि हैचलिंग्स
नीचे डाउन स्ट्रीम चले जाएंगे करके, तो हमने उनको वहाँ से रिकवर किया। अपने हमारे वहाँ पे एक सेंटर है, वहाँ पे रखा। एट द मोमेंट वाटर लेवल वेंट डाउन, हमने उसको वहाँ पे दोबारा रिलीज़ किया। सेकेंड थिंग इज़, बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि जितने भी आइदर साइड ऑफ द रिवर के, गॉर्ज के और रिवर के दोनों साइड में, हमने बताया 14 डिवीजन हमने इन्वॉल्व किए हैं। अवेयरनेस जनरेशन कर रहे हैं हम, इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को थोड़ा हम उनको अदर लाइवलीहुड ऑप्शंस दें। फोर्थ थिंग इज, वी हैव टेकन स्ट्रिंजेंट लीगल मेजर्स ऑल्सो। हमने बिल्कुल फिशिंग को प्रोहिबिटेड कर दिया। नेट तो बिल्कुल बंद किया है हमने, इवन एंगलिंग से भी बंद कर दिया जहाँ पे ये नेस्टिंग एरिया करते हैं। सर, सरकार के लिए और नेचर लवर्स के लिए कितना बड़ा स्टोरी है, कितना बड़ा ये तो एक अभी आपने सुना होगा 22 मई को, मेरे का कब था, 22 मई को शायद इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी था। उसमें उसका स्लोगन था इस बार का, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, let us build back our biodiversity. This is part of one of the major biodiversity. और हमारे फूड चेन में, नेचुरल फूड चेन में, इट प्लेज अ वाइटल रोल. इट इज इम्पॉर्टेंट. तीनों वैरायटी उसको, एक है एस्चुरिन क्रोकोडाइल बोलते हैं, जो हमारा भितरकनिका रिवर माउथ पे मिलता है, रिवर एंड समुद्र में जहाँ मिल रहा है, उसको ऑलमोस्ट उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर टाइप का. दूसरा हमारा मगर है फ्रेश वाटर, जो हमारे सतकोशिया में मिलता है. आप गाँवों में जाओगे उसके आसपास मिलेगा आपको मगर. कई गाँवों में आप जाओगे कहाँ पे जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे भी आपको मगर मिलते हैं. दे आर फ्रेश वाटर मगर. एंड थर्ड इज ये घड़ियाल. इसको स्नाउट वाला होता है, घड़ा इसके ऊपर होता है, घड़ा इसकी लंबी सी होती है, उसमें टॉप पे घड़ा होता है. ये तीसरा है, इसको घड़ियाल बोलते हैं. फ्रेश वाटर मगर हो गया, एक एस्चुरिन मगर हो गया, और ये थर्ड आपका घड़ियाल हुआ. ये तीन मगर की मेन स्पीसीज हैं. वो तीनों उड़ीसा में वाइल्ड में है. ऐसे कई स्टेट नहीं है जहाँ पे तीनों स्पीसीज आपको मिलती हैं, है ना. हर साल हम एस्टिमेशन करते हैं इनकी स्पीसीज का नंबर, करीब टोटल तीनों को पुट टुगेदर 2000 करीब हमारे काउंटिंग में आते हैं. उड़ीसा में मेजर पॉपुलेशन है हमारे एस्चुरिन क्रोकोडाइल जो बोलते हैं वो भितरकनिका में, है ना. और घड़ियाल केवल ये महानदी की इसी स्ट्रेच में है 7 से 10, और हैचलिंग को काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा.